So now we talk about the quadratic equation like ax square plus bx plus c equal to 0. Equation have the solutions, that is also called the roots. So the degree of this equation is 2, or the degree of quadratic equation is always equal to 2. Hence the number of solution is 2. Number of solution is also 2. These solution are also called the roots of this equation. So roots of this equation or roots of this quadratic equation is also equal to 2, and the name of these roots are called the alpha and beta. So alpha and beta are the values of x. We can find the values of x from this equation, and to finding the roots of this equation we use the formula of quadratic, like x is equal to this, that is also called the Sridharacharya formula, minus b plus minus under root b square minus 4ac and whole divided by 2a. B square minus 4ac is a term which is used in quadratic equation, that is called a discriminant. So that value of x can also be written as minus b plus minus under root d and whole divided by 2a. If we take the positive sign, then we get the value of x is equal to minus b plus under root d upon 2a, and if we take the negative sign, then the second root or second value of x will get the minus b minus under root d and whole divided by 2a. The first value of x is also called the alpha, hence we can say the first root alpha will become minus b plus under root d whole divided by 2a, and the second values of x is called the beta, and that will become minus b plus minus under root d upon 2a. अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो x की वैल्यू जो है, इसका जो x का नेचर है जिसको हमने अल्फा और बीटा दैट इज रूट्स कहा है, वो d पे डिपेंड कर रहा है. अंडर रूट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है तो वो d है. इसका मतलब कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी और d की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो तीनों केसेस में जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो अलग अलग होगा. अगर अंडर रूट d की वैल्यू पॉजिटिव है और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हमेशा रेशनल रूट्स मिलेगा, इरेशनल रूट्स मिलेगा, और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रैशनल रूट्स मिलेगा. लेकिन अलग अलग, ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है तो प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू मिलेगी और माइनस साइन के करस्पॉन्डिंग x की अलग वैल्यू मिलेगी, तो दोनों x की वैल्यू अलग अलग होगी. लेकिन रूट्स का जो नेचर होगा वो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रियल होती है, जिसको हम इरेशनल या रेशनल कह सकते हैं. तो जो नेचर ऑफ रूट्स मिलता है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलता है. सो नेचर विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी. लेकिन अगर इस इक्वेशन में d की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो रूट 0 0 हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ x की दो वैल्यू मिलेगी. अगर प्लस तो प्लस 0 करेंगे तब भी सेम वैल्यू मिलेगी, माइनस 0 करेंगे तब भी सेम वैल्यू मिलेगी. तो वैल्यू नेचर ऑफ रूट्स जो होता है इस केस में रियल होता है लेकिन इक्वल होता है, दैट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होती है. बट थर्ड केस में अगर अंडर रूट d नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, इसको इमेजिनरी कहते हैं. इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि x के जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनको हम इमेजिनरी सॉल्यूशन या फिर नॉट रियल सॉल्यूशन कहते हैं. सो व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, नेचर ऑफ रूट्स विल बिकम imaginary. Next one is how to find the sum and product of roots. We know that the first root is x is equal to alpha and second root is x is equal to beta. From here we find the first factor is x minus alpha of the quadratic equation and second factor is x minus beta. Since the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to, so there here in this equation having the two solution alpha and beta. So from these two solution we can write the factor x minus alpha and x minus beta, and this is the values of this equation like x minus alpha and x minus beta. So they should be equal always. After solving this equation we get the ax square plus bx. If we take the a common, then that will become x square plus b upon a into x plus c upon a, and we have to multiply it by a in this equation also because the coefficient of x square should be same. So if we multiply it by a, then that will become is equal to a bracket of, after multiplying these two factors we get the x square minus alpha plus beta into x and plus alpha into beta. So these two a are cancel out. So after comparing these two equation, the coefficient of x here minus of alpha plus beta and here plus b by a. So b by a will become minus sign of alpha plus beta. This negative sign को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो होएगा वो माइनस बी बाई होगा, और आपको पता है अल्फा बीटा मेरे रूट्स हैं और ये सम ऑफ रूट हो जाएगा, तो इसी को हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट, दैट इज
SOR, सो सम ऑफ रूट माइनस b बाई a होता है इन टर्म्स ऑफ ABC। अगर हम कंपेयर करें कांस्टेंट टर्म का तो यहाँ अल्फा बीटा है और यहाँ कांस्टेंट टर्म c बाई a, सो अल्फा इंटू बीटा विल बिकम c बाई a, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज POR। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज POR। इस यहाँ से हम डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, एंड माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बी के टर्म में, तो यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाला जा सकता है, लाइक अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई a, सो स्क्वायर ऑफ माइनस b बाई a, and minus of 4 alpha into beta means product of root, that is c by a. So after solving this equation we get the under root, ये हो जाएगा b square upon a square और यहाँ पे हो जाएगा minus 4c upon a. After taking LCM of denominator we get under root, a square is LCM, so that will become b square minus 4ac, और b square minus 4ac हमें पता है d होता है और a square रूट के बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा हमें मिल जाएगा अंडर रूट d by a. So this is called the difference of root. So यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है एक पैराबोला होता है और उसके जो वर्टेक्स होते हैं वो माइनस b बाई और माइनस d बाई 4 होते हैं। फिर इसके बाद हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था कि किस तरीके से निकालते हैं हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, और उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं हम अंडर रूट d। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स जो मिलते हैं वो रियल एंड अनइक्वल मिलते हैं। अगर d 0 हो जाता है तो नेचर ऑफ रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और d लेस देन 0 पे इमेजिनरी। उसके बाद हमने देखा अल्फा और बीटा, अगर मेरे पास दो रूट्स हैं तो दो फैक्टर बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, और ये दोनों फैक्टर किसके सोल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन और कंपेयर करके हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ रूट्स कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इन दोनों की हेल्प से हम डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट dy है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स एंड हाउ टू deal with the other chapter with quadratic equation. Thank you so much.